آج ویو 360 میں امریکہ اور جرمنی کی طرف سے یوکرین کے لیے مزید ہتھیاروں کی فراہمی، ایکٹیو شوٹر کو پہچاننے میں مدد دینے والی ٹیکنالوجی، اور دوران حمل ماؤں سے بچوں میں ہیپاٹائٹس کے وائرس کی منتقلی کو روکنے کے لیے پنجاب میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کی دوائی جو ہے ہیپاٹائٹس بی کی، وہ ہم حمل میں ضرور شروع کرا دیتے ہیں۔ 28 ویک سے اس کی ٹرانسمیشن ریٹ زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ روسی افواج نے یوکرین کے مشرقی ڈونباس کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑے صنعتی شہر سویرو ڈونسٹک پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، اور یوکرین کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے ہتھیاروں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی ریلوے لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک کو مزید اسلحہ دیں تاکہ روس کی اس جنگ کو ایسے نقطے پر لے جایا جا سکے جہاں اسے جیتنا ممکن ہو۔ اس سے پہلے صدر بائیڈن کی طرف سے یوکرین کے لیے $700 ملین کے ہتھیاروں کے پیکج کے اعلان کے بعد روس نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہا ہے۔ امریکہ کے علاوہ جرمنی اور برطانیہ نے بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی فائزہ بخاری۔ فائزہ، امریکہ یوکرین کو انتہائی جدید میزائل دے گا، یہ بتائیے کہ اس پیکج میں اور کیا کچھ شامل ہے؟ جی عاطف، کل صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں یہ اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو $700 ملین کا یہ اسلحے کا پیکج جو ہے وہ دے گا، جس میں جدید نوعیت کے جو راکٹ لانچر سسٹمز ہیں جنہیں ہائی مارس یعنی ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کہا جاتا ہے، اور دیگر اسلحہ بھی شامل ہے۔ اس پیکج کے حوالے سے سب سے پہلے صدر جو بائیڈن نے منگل کو یہاں کا جو اخبار ہے، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز، اس میں اس کی تفصیلات دی تھیں، جس میں اور بھی اسلحہ جو ہے وہ شامل ہے، جس میں جیولن ٹینک شکن میزائلز ہیں، اسٹنگر جہاز شکن میزائل ہیں، نشانے پر این بار کرنے والے راکٹ سسٹمز بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ اور صدر بائیڈن نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا ابھی 2 ہفتے پہلے امریکی کانگریس سے جو منظور ہوا ہے $40 بلین امریکی ڈالرز کا پیکج یوکرین کے لیے، اس کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے مارچ میں بھی امریکہ جو ہے وہ امداد جو ہے ایمرجنسی اس کا اعلان کر چکا ہے یوکرین کے لیے، تو اوور آل $54 بلین امریکی ڈالرز جو ہیں اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے یوکرین کے لیے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مہینوں میں سب سے بڑا امدادی پیکج ہے کسی بھی ملک کے لیے امریکہ کی جانب سے۔ صدر بائیڈن نے جو ہے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں یہ بھی کہا کہ وہ اس تیزی کے ساتھ یوکرین کو اسلحہ اس لیے فراہم کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ مذاکرات کی میز پر بھی یوکرین کو جو ہے وہ روس کے مقابلے میں وہ بہتر پوزیشن میں ہو۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ یوکرین کو 4 یہ جو ہائی مارس ہیں راکٹ لانچر سسٹمز وہ فراہم کر رہا ہے، اور وہ اس وقت یورپ میں موجود ہیں، اور ان کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ان کو 3 ہفتے کی ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ ابھی یوکرین میں جو راکٹ لانچر سسٹم جو موجود ہیں اس کی رینج 30 کلومیٹرز تک کی ہے، لیکن ان جدید سسٹمز کے وہاں پہ جانے کے بعد یہ رینج بڑھ کے تقریباً 70 کلومیٹر جو ہے تک ہو جائے گی۔ جی عاطف۔ جی فائزہ، اور بالکل امریکہ کی یہ توقع ہے کہ یوکرین ان میزائلز کو اپنی زمین سے رشیا پر فائر نہیں کرے گا۔ فائزہ، روس کی جانب سے امریکہ کے اس اعلان پر کچھ رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی بالکل عاطف، روس کی طرف سے شدید رد عمل جو ہے اس امریکی جو ہے فیصلے کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اتنے جدید راکٹ سسٹمز یوکرین کو فراہم کرنا اسی طرح ہے کہ اس جنگ میں ایک تیسرے ملک جو ہے اس کی براہ راست جو ہے مداخلت اس کے مترادف ہے، جبکہ ان کے جو امریکی ہم منصب ہیں امریکی یعنی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، انہوں نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے کل ملاقات کی ہے یہاں واشنگٹن میں، جس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یوکرینی صدر اور یوکرین نے یہ کہیں دہانی کرائی ہے کہ ان جدید جو میزائل سسٹمز ہیں انہیں روس کی جو ہے سرزمین اس میں حملے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن روس کا یہ کہنا ہے کہ وہ صدر جو زیلنسکی ہیں یوکرین کے صدر، ان کی اور امریکہ کی یا کسی بھی ملک کی اس حوالے سے یقین دہانیوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی حکومت کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے یہ کہا کہ امریکہ جان بوجھ کر، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، کہ آگ پر تیل چھڑک رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یوکرین کو امریکہ کی طرف سے اور اپنے مغربی اتحادیوں کی طرف سے اس طرح سے جدید اسلحہ فراہم کیا جاتا رہے گا
تو وہ मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए उनकी तहरीक ख़त्म हो जाएगी। आतिफ, इसके अलावा थैंक यू जर्मनी फायजा, और हमारे पास इतना ही वक्त है इस सेगमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया आपने कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन किया। अमेरिका के सरकारी इदारे और निजी कारोबार रोज़ाना हज़ारों ऐसे साइबर हमलों का निशाना बनते हैं जिनके ताने बाने अक्सर रूस से मिलते हैं। अगर यूक्रेन की जंग पर वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान तनाव मज़ीद बढ़ता है तो माहिरीन को खदशा है कि रूसी रहनुमा पुतिन एक ऐसे बड़े साइबर हमले का हुक्म दे सकते हैं जो अमेरिका के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। क्या अमेरिका ऐसे किसी हमले से निपटने के लिए तैयार है? देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो मेरे ख्याल में हम अपने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ रूसी साइबर हमले देखेंगे। कांग्रेस के रुकन माइक गैलागर के इन खदशात से दूसरे माहिरीन भी इत्तेफाक करते हैं। साइबर हमला रवायती हथियारों से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। सवाल ये है कि अमेरिका किसी मुमकिन साइबर हमले के तबाहकुन नताइज के लिए किस हद तक तैयार है। खैर, ये एक पेचीदा मामला है। एक कामयाब फ्रांसीसी नजात कारोबारी शख्सियत निकोलस चलान 2016 में बैनुल-अक़वामी सतह पर साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए अमरीकी हुकूमत से मुंसलिक हुए। ताहम वो हुकूमत की साइबर सिस्टम के महफूज होने की सलाहियत से मायूस हैं। चलान 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर हमले की याद दिलाते हैं जो अमरीकी ईंधन की मुंतकिली का निज़ाम है। इसके नतीजे में अमरीका के निस्फ मशरकी साहिल के लिए गैस की फराहमी रुक गई थी, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां कई रोज तक मुतासिर हुई। हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब चीन और रूस दोनों को अगर बरसों नहीं तो कई महीनों तक अमरीकी निज़ाम तक रसाई हासिल रही। दर हकीकत वो शायद अभी भी बुनियादी ढांचे के अहम निज़ामों के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है। ये मुज़ायका खेज बात है कि हम फिर भी क्यों मुतमईन हैं। दीगर माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के बड़े पैमाने के साइबर हमलों के असरात जुग्राफियाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों की नौयत के एतबार से महदूद होंगे। मेरे ख्याल में जो नुकसान हो सकता है उसका दायरा बड़ा लेकिन इलाकाई होगा। उन शोबों में हमारे पास कई मुतबादिल हैं, लिहाजा अगर किसी इलाके में बिजली का शोबा मुतासिर होता है तो सदबाब के लिए निज़ाम में कुछ लचक मौजूद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सुपर पावर्स बाहमी तौर पर यकीनी तबाही या MAD के उसूल की वजह से मुकम्मल साइबर जारहाना सरगर्मियों का तबादला करने से गुरेज करती हैं। MAD का उसूल सिर्फ जौहरी जंग पर ही नहीं बल्कि साइबर वारफेयर पर भी लागू होता है। डेटरेंस का ये उसूल इस नज़रिए पर मुनहसर है कि एक सुपर पावर की तरफ से दूसरी ताकत के खिलाफ साइबर अटैक को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, जिससे दोनों मुल्कों को तबाही का सामना होगा। उन्हें समझना होगा कि हमारी कौम रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा करेगी। एस्टोनिया पहला मुल्क था जो रियासत पर एक शदीद रियासती साइबर हमले का शिकार हुआ। अप्रैल 2007 में मुमकिना तौर पर क्रेमलिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैकर्स ने मुल्क की हुकूमत, मीडिया और मालियाती इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली वेबसाइट्स पर हमला किया। हमलावरों ने इंटरनेट से मुंसलिक आलात के नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया। टोमास हेनरिक एल्वस उस वक्त एस्टोनिया के सदर थे। इसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के फैलाव के साथ वेब से मुंसलिक आलात की तादाद में भी इजाफा हुआ। इसी तरह कामयाब हैकिंग के इम्कानात भी बढ़ गए। मिसाल के तौर पर सिर्फ लंदन शहर में 5 लाख क्लोज सर्किट टीवी या CCTVs हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में बहुत तेजी से तरक्की होती है, इसलिए सुपर पावर सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनके मुखालिफिन के पास किस किस्म के साइबर जारहाना टूल्स हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि यूक्रेन की जंग से रूस की हकीकी सलाहियतों की एक अनोखी झलक ज़रूर सामने आई होगी, जिससे न सिर्फ रवायती जंग बल्कि साइबर वारफेयर में मॉस्को के दायरा कार की हद का भी इल्म हुआ होगा। अगर आप मुझसे 3 माह पहले पूछते तो मैं आपको एक मुख्तलिफ जवाब देता, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उन्हें दिफा पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। वो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर रहे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस की कारकर्दगी बेहतर न होने की एक वजह तनाज़े में तीसरे फरीक की शमूलियत है। इस सतह पर यह काफी मुतासिर कुन है कि दुनिया के कितने दूसरे शहरी यूक्रेन या रूस के लिए या उनके खिलाफ इस तनाज़े में शामिल हो रहे हैं। इस एतबार से रूस पर इसका असर तबाह कुन रहा है। दुनिया भर के लोग जो कुछ रूसी फौज और हुकूमत यूक्रेन में कर रही है उसके खिलाफ हैं। माहिरीन का कहना है कि इस इलाकाई जंग के आलमी असरात होंगे और ये साइबर स्पेस में ताकत की तकसीम के बारे में हमारे नजरियात को नई शक्ल दे सकती है। इगोर सेगनंका के साथ बहजत जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप
ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के शहर तुलसा में एक मेडिकल बिल्डिंग में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। तुलसा पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक इनके डिप्टी चीफ जॉनथन ब्रुक्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद की तस्दीक की गई है और बताया गया है कि हमला आवर ने खुद को सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बुध को पेश आने वाले इस वाक़े में नामालूम शख्स ने हमले के दौरान एक पिस्तौल और राइफ़ल दोनों से फायरिंग की। तुलसा पुलिस के मुताबिक हमलावर की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है और इसकी शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। ये ताज़ा वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब रियासत टेक्सास के शहर यूवाल्डी के एक स्कूल में होने वाली शूटिंग में 19 बच्चों और 2 टीचर्स की हलाकत के बाद मुल्क भर में सियासतदान और असलहे पर पाबंदी की हिमायत करने वाले अमरीकी पहले ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो ऐसे इक़दामात करे कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। लेकिन 24 मई के बाद से अमेरिका भर में अब तक शूटिंग के 15 मज़ीद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक उनमें 11 से ज़्यादा अफराद हलाक और 67 ज़ख्मी हुए हैं। सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान आतशी असलहे की खरीदो फरोख्त के बारे में सख्त कवानीन के ख्वाहां हैं, मगर रिपब्लिकन पार्टी में ऐसी कानून साजी के लिए हिमायत बहुत कम है। दूसरी तरफ टेक्सास में कत्लेआम के वाक़े में हलाक होने वाले बच्चों की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी है, जहां दिलसोज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के चंद स्कूलों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नस्ब की जा रही है जो एक्टिव शूटर सिनेरियो यानी उन हालात में पुलिस की मदद करेगी जब कोई मुसल्लह शख्स स्कूल में दाखिल होकर फायरिंग कर दे। ये टेक्नोलॉजी ब्लू पॉइंट नामी सिक्योरिटी कंपनी ने 2012 में रियासत कनेटिकट में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में कत्लेआम के बाद तैयार की थी और अब इसे मुख्तलिफ स्कूलों में नस्ब किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान की रिपोर्ट में। फायरिंग की इत्तला सुनने के बाद जब भी पुलिस की रिस्पांस टीम जगह पर पहुंचती है तो उन्हें अक्सर कुछ मालूम नहीं होता कि मुजरिम किस जगह पर है और उसका हुलिया क्या है। सैकड़ों तालिब इल्मों, सहमे हुए बच्चों और स्कूल के अमले में से उन्हें एक ऐसे इंसान की शनाख्त करनी पड़ती है जिसको बहुत कम लोगों ने देखा हो। अमेरिका के चंद स्कूलों में नस्ब की जाने वाली ये टेक्नोलॉजी देखने में तो आम फायर अलार्म जैसी मालूम होती है, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। इस अलार्म के एक्टिवेट होने के बाद पुलिस की रिस्पांस टीम के पास पूरी इमारत का अंदरूनी नक्शा पहुंच जाता है। कमांड एंड कंट्रोल नामी सॉफ्टवेयर न सिर्फ पुलिस को इमारत का फ्लोर प्लान फराहम करता है, बल्कि इमारत के अंदर नस्ब हुए तमाम सिक्योरिटी कैमरों की फीड भी उन्हें बराह रास्त मौसूल होना शुरू हो जाती है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इमारत में मौजूद कोई शख्स अपने सेलफोन से वीडियो बनाना शुरू कर दे तो ये वीडियो भी पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। ब्लू पॉइंट की ये टेक्नोलॉजी इमारत के नक्शे को सिक्योरिटी कैमरों और आम लोगों के सेलफोन से बनाई जाने वाली वीडियो के साथ मिलाकर पुलिस को पहुंचाती रहती है। और जब पुलिस की टैक्टिकल यूनिट जगह पर पहुंचती है तो उसके हर फर्द को यह मालूम होता है कि एक्टिव शूटर कितने हैं, इमारत में किस जगह पर हैं और उनका हुलिया क्या है। अमेरिका के चंद स्कूलों में ये टेक्नोलॉजी नस्ब होना शुरू हो चुकी है, मगर स्कूल के बच्चों और असातिज़ा की यही उम्मीद है कि इसके इस्तेमाल करने की नौबत कभी ना आ सके। अब्दुल अजीज़ खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब सेहत की कुछ बात। सेहत आमा के अहदेदारों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ दिनों में अमेरिका और कनाडा में हेपेटाइटिस ए के केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह मार्केट में फ़रोख्त होने वाली एक मखसूस ब्रांड की ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज़ बताई गई हैं। अमेरिका में खुराक और अद्वियात के निगरान इदारे FDA ने बताया है कि फ्रेश कॉम्पो नामी ब्रांड की ये स्ट्रॉबेरीज़ 5 मार्च से 25 अप्रैल के दौरान कुछ ग्रोसरी स्टोर्स में फ़रोख्त की गई थीं। FDA के मुताबिक अमेरिका में हेपेटाइटिस ए के 17 और कनाडा के सेहत आमा के एहलकारों के मुताबिक वहाँ अब तक हेपेटाइटिस के 10 मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में जिगर के आर्ज़े या हेपेटाइटिस से मुतासर अफराद की तादाद 80 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से मार्च 2022 में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के दरमियान
पंजाब भर में हेपेटाइटिस के 16 लाख से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए थे। हेपेटाइटिस में मुब्तला माओं से बच्चों में इस बीमारी के मुंतकिल होने के कितने इम्कानात हैं? तफसील लाहौर से समन खान की रिपोर्ट में। सोडीवाल की रिहायशी हुमैरा हामला हैं। टेस्ट करवाने के लिए अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोडीवाल आना हुआ तो इनमें हेपेटाइटिस सी की तशखीस हुई। मेरा पहले एक बेटा है 3 साल का है और उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर साहब ने कि आप अपने हस्बैंड को भी लेके उनके भी टेस्ट रिपोर्टें वगैरह हों। डॉक्टर्स कहते हैं कि हुमैरा या इन जैसी बहुत सी माओं की फिक्रमंदी जायज़ है। हेपेटाइटिस सी में माँ से बच्चे में जरासीम की मुंतकली का इम्कान 2 से 8% है, तो हेपेटाइटिस बी में यही इम्कान 70 से 80% है। इसकी दवाई जो है हेपेटाइटिस बी की वो हम हमल में ज़रूर शुरू करा देते हैं। 28 वीक 6 की ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, तो हमने बच्चे और माँ दोनों को प्रोटेक्ट करना हेपेटाइटिस बी से। दवाई हेपेटाइटिस सी की प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते हामला खातून को, क्योंकि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बच्चे के लिए नुकसानदेह। तो उनको फिर हम गाइड करते हैं कि जब आप डिलीवरी करा लेंगी तो उसके बाद फिर हम आपकी दवाई शुरू करेंगे। पैदाइश के 12 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तमाम नौमौलूद बच्चों को लगाई जाती है, लेकिन एक हेपेटाइटिस पॉजिटिव माँ के बच्चे को हेपेटाइटिस बी हिम्यून ग्लोबुलिन की इजाफी वैक्सीन भी लगाई जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% काले और पीले यरकान में मुब्तला है। ये क्योंकि डिज़ीज़ जो है वो ब्लड से फैलती है। ब्लड में अगर आप रीयूजेबल सिरिंजेस आप यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवा रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंट ऐसी जगह पे डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जहाँ के वहाँ पर औजार जो है वो क्लीन नहीं है, प्रॉपर्ली स्टरलाइजेशन नहीं हो रही है, तो आपका ये हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा फैलता है। 2008 में एक सर्वे हुआ था, तो उसमें पंजाब की जो पॉपुलेशन थी 5.8% थी जो कि हेपेटाइटिस सी के साथ मुब्तला थी और बी के साथ 3.1% थी। 2018 में एक और सर्वे करवाया गया, तो उस सर्वे में जो तनासब था वो इंक्रीज़ हो के 8.9% हो गया फॉर हेपेटाइटिस सी, और बी के मामले में हमें कुछ कामयाबी मिली कि उसमें तनासब कम हो के 2.1% पे चला गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सूबे पंजाब में हेपेटाइटिस क्लिनिक 2016 से काम कर रहे हैं, जहां स्क्रीनिंग से लेकर टेस्ट और अद्वियात और फॉलोअप जैसी तमाम सहूलतें मुफ्त दी जाती हैं। तकरीबन हर क्लिनिक में रोज़ाना आने वाले मरीजों की शरह लगभग 100 है, जिसमें मर्दों का तनासुब ज़्यादा है। 280 जो है वो क्लिनिक्स हैं हमारे। हर THQ DHQ हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस क्लिनिक है। उधर हमारा मेडिकल ऑफिसर तैनात है, हमारी रेफरेंस लैब भी है, तो उधर हम मुख्तलिफ इदारों की स्क्रीनिंग भी करते हैं, जो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। हकूक़ खल्क तहरीक की जानिब से लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्धू में लगाए गए हालिया मेडिकल कैंप में सामने आने वाले नताइज इंतहाई तशवीशनाक हैं। प्रेवलेंस थी, जो पॉजिटिविटी परसेंटेज थी वो 13% है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और अब हम ये कर रहे हैं कि जिन लोगों का पॉजिटिव आया है उनकी एक कंफर्मेशन के लिए एक और टेस्ट करवा रहे हैं। पाकिस्तान में बीमारी को नज़रअंदाज करने के रुझान की वजह से हेपेटाइटिस में मुब्तला तकरीबन 45% अफराद में मुआलिज तक पहुँचने से पहले ही जिगर की खराबी का अमल शुरू हो चुका होता है, जिसमें जिस्म में दर्द, बदहज़मी, थकन और हल्के बुखार जैसी अलामात आम हैं। लेकिन 55% लोग 3 माह की अद्वियात का कोर्स मुकम्मल करवा कर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बुनियादी तौर पर ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो ताइयों के पास ताकत के टीके या ड्रिप्स लगवाने ना जाएं, और अगर हेपेटाइटिस तशखीस से पहले आपके जिगर को मुतासर कर चुका है तो जिगर के सुकर जाने या जिगर के कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज में मुब्तला होने का इम्कान हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन खान की रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में जो नंबर्स और मालूमात फराहम की गई वो काफ़ी अलार्मिंग हैं। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान रशीद से, जो पंजाब हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के फोकल पर्सन हैं। डॉक्टर रशीद, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का मर्ज़ तो वबाई शक्ल इख्तियार कर ही चुका है। ये बताइए कि इस मामले में वफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐसी क्या तजावीज़ या ऐसे क्या एक्शंस ले सकती हैं जिससे एहतियात, इलाज और वैक्सीनेशन के अमल को बेहतर और मौसर बनाया जा सके? थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने भी बताया, प्रोफेसर मुगीज साहब ने, कि पूरे पंजाब में 280+ हेपेटाइटिस क्लिनिक्स ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में।
لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ چیز بڑی جلدی ریلائز کی کہ اگر ہم صرف پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی پریونشن کے لیے بہت سارے ایسے کٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں نظر رکھنی ہے, جس میں باربر شاپس ہیں, اسی طرح بیوٹی سلونز ہیں. یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے کہ جو ہیپیٹائٹس پنجاب میں جہاں پہ بھی بہت زیادہ پریولنس ہیں, یہ ان کی وجہ سے پھیلا ہے. اسی طرح کویکس ہیں, ان پہ بھی چیک رکھنے کے لیے پورا اب ایک ہیپیٹائٹس پنجاب ایکٹ ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو ان کے جتنے بھی سیلون شاپس ہیں, باربرز ہیں, ان کے لیے لائسنسنگ سسٹم شروع ہوا ہے. اور ہیپیٹائٹس کلینکس کو زیادہ فعال کرنے کے لیے ہر کلینک پہ یہ فیسلٹی موجود ہے کہ جہاں ہم اسکریننگ سے PCR, میڈیسن اور جتنی بھی گائیڈ ہیں وہ ساری ہر پیشنٹس کے لیے ایون BSU لیول تک کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پریولنس زیادہ ہے یہ فری آف کاسٹ پیشنٹ کو مہیا کی جائے. یہ پنجاب ہیپیٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس میں ہم ویسٹ مینجمنٹ اور اسی طرح انفیکشن کنٹرول کا جو پریونشن کا پارٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس دے رہے ہیں ابھی پچھلے تقریباً 2 سے 3 سال سے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے پریولنس میں. ٹریٹمنٹ تو چل رہی ہے, یہ تقریباً 2012 سے کلینکس ہمارے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن اب زیادہ فوکس جو ہے وہ پریولنس پہ ہے کہ بیماری کا بچاؤ بھی بہتر انداز میں ممکن ہو سکے. ڈاکٹر عرفان, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے. جیسے آپ نے ابھی یہ رپورٹ بھی دیکھی کہ لوگ اگر کمزوری فیل کرتے ہیں تو وہ جا کے طاقت کے ٹیکے لگوا لیتے ہیں, یا جو گھر میں آس پاس محلے میں کوئی ڈسپنسری ہوتی ہے یا چھوٹا سا کلینک ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, جہاں کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جو سٹاف ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں. تو اویئرنیس کیمپین کو کس طرح سے امپروو کیا جا رہا ہے؟ جی, یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے جو آپ نے بات کی ہے ابھی. ایون ادر دین دیٹ کہ پیشنٹ کو انفیکشن ہوتا ہے, جن پیشنٹ کا علاج ہوا ہوتا ہے وہ بھی ری انفیکشن کے ساتھ, مطلب دوبارہ وہ پیشنٹ انفیکٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. جب ہم ان کو پروو کرتے ہیں تو مور اور لیس ان کا جو پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے وہ انفیکشن اچیو کیا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے, یا وہ سیم باربر شاپ ہوتی ہے, یا جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ وہ کویک ہوتا ہے, ان کے محلے میں کوئی انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے. تو جو کویشچن آپ نے پوچھا ہے اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. جو ہمارے DDHOs ہیں وہ بڑا اسٹرکٹلی اس پہ ایکشن کر رہے ہیں. جتنے بھی کویکس ہیں ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایون اپنے ڈسٹرکٹ میں خود اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میں خود مانیٹر کرتا ہوں. ہماری منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سیلون شاپس اور اسی طرح کتنی باربر شاپ جو ہیں وہ SOPs کو فالو کر رہی ہیں. ہم ان پہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بھی SOPs ہیں کیا وہ ہمارے پروگرام کے مطابق ہیں. تو ڈاکٹر عرفان, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہیپیٹائٹس کی اقسام پاکستان میں تو زیادہ تر B اور C پائی جاتی ہیں, لیکن اس کی کون سی اقسام متعدی ہیں اور ان کے بچاؤ کے لیے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کیا احتیاط ہونی چاہیے, لیکن ایسے کون سے آپ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 3 ایسی میجر چیزیں بتائیے جو کہ ہر کسی کو جس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے, ایک بڑی اچھی بات آپ نے بھی ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ انسیسری انجیکشنز سے بچنا چاہیے. ایک رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی, اس کے مطابق پاکستان میں جتنے انجیکشنز یوز ہوتے ہیں ان میں مور دین 90% آر انسیسری. مطلب لوگ جاتے ہیں, وہ کسی بھی کلینک پہ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے جی انجیکشن لگا دیں, ڈرپ لگا دیں. تو سب سے پہلی میری ریکویسٹ تو یہ ہے پیشنٹس کے, ہماری جنرل پاپولیشن کے لیے بھی, کہ انسیسری انجیکشنز پہ بالکل نہ آپ جائیں. خود آ کے پیشنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ آپ ہمیں ڈرپ لگا دیں, انجیکشن لگا دیں. تو یہ ڈیسیژن ڈاکٹر عرفان بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کرنا پڑے گا, لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. ہمارا فیس بک کا پیج ہے facebook.com/VOA Urdu اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.